Good morning, class 6. So, are you ready to learn social studies? What we will learn today? We will learn a subject called social studies. Do you know what is social studies? Social studies is a subject in which we read about ourselves, about our surrounding, about our neighborhood, about our earth, about our past, about our present, and about everything what you see around you. Okay? So in social study, we study these things. Now you will say that we have studied it earlier in later classes in class 5, 4 and so on. Means you are studying social from class 1 and now you are in class 6. So what is the difference? The main difference is now you are going to see that your social studies is divided into 3 parts. What are those? What are those parts? The first part is history, second part is civics, and the last part is geography. It is last but not the least. Every part has its importance. Okay. So now what we will read today? Let's start from geography. Okay. Why let's start from geography? Do you know the meaning of geography? What is geography is? Geography is the study about earth. Geo means earth, and studying about it, its physical features, its surface, its population, its area, everything what you study about earth comes under geography. So let's study about geography. I said you na, geography means earth. Are you watching? What is this? Can you see? Can you name it? What is this? This is globe. Yes, very good beta. This is globe. And what globe is? Globe is a small model of earth. It is also called replica of earth. ठीक है? तो ये क्या कहलाता है globe? Small model of earth. तो आप geography means earth ही होता है. तो let's study about earth. अर्थ के बारे में पढ़ लें. तो सबसे पहला चैप्टर भी आपका कोइंसिडेंटली यही है, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. पहला चैप्टर ही है आपका अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में. तो अब जरा इसके बारे में जानते हैं. खैर इसको हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में आई गेस पढ़ा आपने वीडियो. अगर आप क्लास 4 का देखेंगे तो आपको उसमें मैंने बताया है. आप में थोड़ा सा डिटेल्ड है बस, तो उसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं ना. ओके, रेडी नाउ. तो व्हाट इज अर्थ? But before recognizing about earth, let's know how earth formed and how our solar system formed and from where this earth, this solar system, this universe came from. कहाँ से आए ये सब? पहले तो ये जानना जरूरी होगा ना हमारे लिए. हम कैसे पैदा हुए, हमारा अर्थ कैसे बना, हमारा ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. ओके, तो लेट्स स्टडी इट. ओके बेटा देखो, देयर इज अ बेल्जियन प्रीस्ट, ठीक है, हिज नेम इज जॉर्ज. ओके, तो ही बिलीव्ड दैट दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम अ थ्योरी एंड ही नेम्ड दैट थ्योरी बिग बैंग थ्योरी. ओके, मीन्स व्हाट ही बिलीव दैट this in 1920, means approximately in 1920 he gave this theory that our earth and this whole universe is created by a big bang theory. ठीक है, now know that theory, let's know about that theory, let's study about that theory. हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं बेटा. तो देखो, what is big bang theory? big bang theory है क्या? big bang theory ये है बेटा, ऐसा कहा जाता था कि this whole universe was trapped into a big box. Okay, this whole universe was trapped into a big box, and due to some big explosion, it was bang. मतलब एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और बड़ा सा बैंग हुआ. ठीक है, एंड द होल यूनिवर्स वाज स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्पेस. और पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में, इसको आप कह लीजिए कि ये आपका यूनिवर्स, डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, जो भी आप देखते हो आप, ये सारी चीज़ें बिखर गई. बहुत दूर दूर तक सारी चीज़ें बिखर गई. ओके,
अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यही आपका चैप्टर है, यही आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है। तो अब देखो बेटा यूनिवर्स में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी यूनिवर्स में क्या है, वो है आपका स्पेस, ठीक है। उसके बाद आपके स्टार्स हैं, स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ठीक है। स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस, मीटियर्स, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है अपने चैप्टर में, ठीक है। तो आप एकदम तैयार हो जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग जानेंगे, जो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ बैठ के घर पे बैठते हो रात में, आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना आसमान में, आसमान में बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। बचपन में हम लोगों ने पोएम भी पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। आज वही व्हाट यू आर का क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने वाला है कि क्या है, ठीक है, क्या है स्टार्स, हाउ व्हाट स्टार्स आर, हाउ दे ट्विंकल्स, कैसे वो ट्विंकल करते हैं, कैसे ये डिफरेंट प्लैनेट्स है, कैसे हमारा अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे हम रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम रोटेट कर रहे हैं, कैसे डे होता है, कैसे नाइट होता है। ये सारी जानकारी आपको आज मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगी। एकदम तैयार हो जाओ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर, रेडी, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्टार्स। ओके बेटा, तो स्टार्स पढ़ते हैं, रेडी ना। स्टार्स, व्हाट स्टार्स आर, stars are the big burning ball of gases, okay, big burning ball of gases which produce their own heat and own light. stars क्या होते हैं, stars एक बड़ी बॉल होते हैं, किस चीज के, गैसेस के, बर्निंग जलती हुई गैसेस के एक बड़े बॉल होते हैं जो अपना हीट और अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। आप अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हो नहीं ना, आप तो लाइट जलाते हो तब पढ़ते हो, ठीक है। लाइट ऑन करोगे तब पढ़ोगे, लाइट बंद करोगे ऑफ करोगे तो फिर बंद हो जाएगी लाइट। आपके अंदर से लाइट निकलती है, अंधेरे में आप देखियो कि आप अंदर से लाइट निकल रही है, नहीं निकलती ना। लेकिन स्टार्स ऐसी बॉडीज होते हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा देयर आर सो मेनी स्टार्स इन आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। वी कैन नॉट काउंट, आप काउंट कर सकते हो स्टार्स, कहते हैं ना तारे गिनो, ठीक है। आज रात में लेट जाइएगा छत पे, गिनिएगा, देखिए कितने आप गिन पाते हो, क्लियर। तो स्टार्स आर अनकाउंटेबल, गिन ही नहीं सकते हम। लेकिन एक स्टार जिसको हम देखते हैं, कब देखते हैं, दिन के समय देखते हैं, सुबह सुबह दिखता है वो स्टार। देखे हो आप कहोगे सुबह स्टार कहाँ दिखता है सर, स्टार्स तो रात में दिखते हैं, एकदम जब चंदा मामा हमारे निकलते हैं, जब मून निकलता है तब स्टार्स दिखते हैं, दिन में कैसे स्टार दिखेगा, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन नहीं बेटा, सन भी एक स्टार है, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, सबसे पास स्टार जो है ना हमारे, वो कौन सा है, वो सन है। सन भी स्टार है, क्यों, क्योंकि सन भी अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है ना। सन से लाइट आती है ना, सन से गर्मी, जैसे देखो इस समय गर्मी पड़ रही है तो कहते हैं ना सूरज, हाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि सन से बहुत तेज़ लाइट आ रही है अर्थ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो इसीलिए बेटा सन जो है क्या है, वो भी एक स्टार है। अच्छा, सन की तरह ही एक स्टार और है जो कि सन के पास पड़ता है, उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स को या क्लस्टर ऑफ स्टार्स को ही हम गैलेक्सी भी कहते हैं। खैर गैलेक्सी में तो अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट था तो मैंने आपको सोचा बता दूं। अच्छा एक बात बताऊं, स्टार्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। कुछ स्टार्स हमको हमारी नेकेड आई से दिखाई दे जाते हैं। नेकेड मीन्स पता है, हमारी ये बिना चश्मा लगाए, बिना कोई बाइनाकुलर यूज़ किए, नंगी आँखों से, ठीक है, इससे हमको कुछ स्टार्स दिखाई दे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्स भी जो हमको इस आँख से दिखाई नहीं देते। तो वो क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है, मेनी लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो अब आप कह रहे हो ये लाइट ईयर्स क्या बोल रहे हैं सर, अरे दूर है तो ठीक है, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यही होता है ना, ये लाइट ईयर्स क्या होता है। तो बेटा जब हम डिस्टेंस अपने प्लैनेट की, अर्थ की डिस्टेंस जब स्टार से मेज़र करते हैं ना, तो हम लाइट ईयर्स में ही मेज़र करते हैं, ठीक है। अब लाइट ईयर्स क्या मतलब होता है मालूम है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इस डिस्टेंस, इसी मेजरमेंट से, इसी यूनिट से हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर को। बात समझ में आ रही है आपको।
तो ये तो आपके थोड़ा बहुत मैंने स्टार्स के बारे में आपको बता दिया। मैंने कहा था कि स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ये भी बताऊंगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। वैसे आपके बुक में तो नहीं दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बेटा देखो, जो क्लाउड्स होते हैं ना, ठीक है, लेयर ऑफ एयर, बहुत सारे एयर की लेयर है हमारे अर्थ से लेकर के, और स्टार्स चूँकि बहुत दूर है, तो यहाँ से स्टार्स तक नज़र पहुँचते पहुँचते हमको हमारी आँखों को बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। तो अच्छा, इसके बारे में डिटेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आगे है, अभी तुरंत नहीं है, अभी आगे है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अप्रॉक्स में ही बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे हमारी जो नज़र है, हमारी जो आँख से जो हम लोग देखते हैं, जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन हमारे आँख पे आती है, उसको वहाँ से और हमारी आँख तक पहुँचने में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, जिनकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, स्टार्स में बल्ब थोड़ी लगा के कोई ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप यही जान जाओ, अभी फ़िलहाल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, साइंस में भी पढ़ोगे ये बात कि कैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। और मैंने भी आपको एक प्रोसेस बताया कि चूँकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन गैलेक्सी, रेडी टू लर्न अबाउट गैलेक्सी।